Myself, Dr. Raval Kavit Harshid Rai, Assistant Professor at Rameshwaram Institute of Technology and Management. So today we are going to study about suspensions part 1, brief introduction, classification and applications. So in this lecture we are going to study about suspension first of all, and we will have a brief introduction about it. So what are the suspensions? Suspensions are biphasic liquid dosage form in which the finely divided solid particles of size ranging from 0.5 to 5 micrometer are disposed in a liquid or semi-solid continuous phase. Okay. So, let us understand this by a diagram. Suppose we have a beaker here, and in this beaker we have a continuous phase which is liquid. It can be aqueous phase, means water, or it can be non-aqueous phase, means oil or organic solvents. Fine. In this continuous phase, the solid particles of size 0.5 to 5 micron, or you can say micrometer size. This 0.5 to 5 micron sized solid particles are dispersed like this. The condition is that only that the particles should have the size range between 0.5 micrometer to 5 micrometer. Why it is so? Because if the particles are having size larger than 5 micrometer, then due to the gravitational force they will easily sediment, and due to sedimentation there will be a cake formation at the bottom, right. So, a good suspension is what kind of suspension? A suspension in which the solid particles are remained in suspended state for a longer period of time, or you can say for the whole shelf life of a product. That is a good suspension. It means what? This particle should be remained suspended, ऐसे ही ऐसे इसमें फ्लोटिंग स्टेज में रहने चाहिए, सस्पेंडेड रहने चाहिए, तभी हम उस सस्पेंशन को एक अच्छा सस्पेंशन मानते हैं। अगर उसमें पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तो नीचे एक स्लरी जैसा दिखेगा, आपको केक फॉर्मेशन दिखेगा, सॉलिड मास दिखेगा, जो कि आपने काफ़ी बार सस्पेंशन में देखा होगा। जो रीडिस्पोज सस्पेंशन की बॉटल्स आती है, पैरासीटामोल सस्पेंशन होते हैं, उसमें भी तो आपने देखा होगा कि अगर उसको आप रखे रहें 10 दिन बाद चेक करें तो नीचे आपको सॉलिड पाउडर दिखता है, ऊपर सिर्फ लिक्विड दिखता है। लेकिन अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आगे रीडिस्पोसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तब उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। नाउ द सॉलिड पार्टिकल्स, this act as disperse phase here, and the liquid vehicle act as continuous phase, which we have already studied, and the suspension which are meant for external application. Mostly suspension can be used for internal as well as external application. Internal application means via oral route or via intravenous route or via any invasive route, means intramuscular injection or IV injection, right. But external application means on the body, not inside the body, right. So, on the body means topical application, that is called external application. So, when we are making a suspension formulation for external application that is meant to be applied on the skin, then the particle size should be smaller, much smaller as compared to internal suspensions. Why? Because if the particle size is bigger, after application on the skin we can have a gritty, you can say grittiness or gritty feeling, and this gritty feeling is not considered as a good parameter for a good suspension. Why? Right, because patients do not like it. When you apply the suspension or on your skin and you feel grittiness, it means that the suspension is not good and you will not have a good feeling. So, we have to have the small particle size when the suspension is being formulated as for external application, right. Apart from that, when we have a small particles, we have another advantage of greater surface area, because we know that as the particle size is smallest, or you can say the particle size is decreased, then it has a more surface area as compared to larger particles, and due to this increased surface area
the greater area of application will be covered. It means it will cover the whole skin area in a you can say a large surface will be covered with small particles. So, it will give the better effect. Now, what are the specific advantages of the suspension? Let us understand this. So, the first advantage is that for unstable or degradable drugs. So, the drugs which are unstable or degradable in solution form specifically, for that drugs we can formulate it in suspension dosage form, right. So, there are certain drugs जिसको हम अगर solution form में रखते हैं तो वो unstable होते हैं, मीन्स वॉट, अगर उसको वाटर में रखा है, वाटर सॉल्वेंट एज ए यूज़ किया है, उसमें अगर ड्रग पार्टिकल्स है, अगर उस ड्रग की प्रॉपर्टी है कि वो डिग्रेड हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, तब उस केस में भी हम सस्पेंशन फॉर्मुलेशन बना सकते हैं. या कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म में अगर ड्रग हमारी स्टेबल नहीं रह पा रही है, अनस्टेबल है, राइट, in that case we can make suspension of that specific drug. Now the second advantage is when the drugs for which they are having a characteristic of not being soluble in water and a non-aqueous solvent is not acceptable. So here the condition is what? मान के चलो कि हमारे पास ऐसी कोई ड्रग है जो पानी में soluble नहीं है, अब वो water soluble नहीं है, right? एंड अगर वाटर सोल्यूबल होती तो हम क्या करते, हम सिंपली सिरप फॉर्म में दे देते या डिफरेंट डोजेस फॉर्म यूज़ करते, बट वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, उसकी वाटर सॉल्यूबिलिटी अच्छी नहीं है. दूसरी चीज़, अगर वो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में हम दे सकते हैं, बट अगर हम नॉन एक्वियस सॉल्वेंट लेंगे दैट इज़ मोस्टली नॉट एक्सेप्टेबल. वाई? नॉन एक्वियस सॉल्वेंट मीन्स ऑयल, और अगर आप ये सोच सकते हो कि किसी को अगर ऑयल पीने के लिए बोला जाए तो पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज उसकी पैलेटेबिलिटी अच्छी नहीं होती. इट डज नॉट गिव द गुड सेंस ऑफ स्वैलोइंग टू द पेशेंट, राइट. तो ये प्रॉब्लम आता है. सो फॉर दैट स्पेसिफिक ड्रग्स जहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इफ द ड्रग इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉन एक्वियस सॉल्वेंट इज अनएक्सेप्टेबल, इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल corticosteroids. So corticosteroids are the drugs for which we are making a suspension, right. Now the third advantage of the suspension. So it is the most suitable preparation for drugs having unpleasant taste and odor. Taste and odor plays a, you can say, a critical as well as pivotal role when it comes to formulating a dosage form, because जब भी आप कोई मेडिसिन खाते हो तो, और वो भी ओरल रूट से, तो आप उसके टेस्ट की इफ़ेक्ट आती है, और ख़ास करके जब वो लिक्विड डोजेस फॉर्म में हो, राइट. एंड उस टाइम पे उसका ऑर्डर एज वेल एज टेस्ट दोनों ही मैटर करता है, बिकॉज इट कैन गिव द ऑब्नॉक्सियस फीलिंग टू द पेशेंट एंड दे कैन मेक अ वॉमिटिंग और लाइक दैट, और इट कैन ऑल्सो इंड्यूस द नोजिया, राइट. इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एज वेल एज ऑर्डर. हम उसको मास्किंग कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट के केस में. क्लोराम्फेनिकोल पाल्मिटेट is having not it's having bitter as well as metallic taste, as well as it is not having a good odor. So to mask that we can formulate it in a suspension, right. Now the insoluble solids, they also act as a reservoir of the drug. तो ये एक और अच्छा हमें एडवांटेज मिलता है when we are making a suspension as dosage form. क्या एडवांटेज मिलता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है सस्पेंशन में, राइट. कंटिन्यूस फेज है, दैट कैन बी आइदर वाटर और नॉन एक्वियस कंटिन्यूस फेज. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स, वो एक तरीके से ड्रग का रिजर्वायर फॉर्म है. वो इन, और कैसे होता है, इनसोल्यूबल है वो, राइट. यहाँ पे इनसोल्यूबल फॉर्म में है और एक ड्रग रिजर्वायर की तरह काम कर रहे हैं. तो जब भी हम सस्पेंशन देते हैं तो हमें एक तरीके से एक स्लाइट फॉर्म ऑफ कंट्रोल रिलीज भी मिलता है, राइट. और ओवर द टाइम लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है, ठीक है. और ये दोनों ही केस में, फॉर एन एग्जांपल, अगर हम इंटरनल सस्पेंशन की बात करें जो कि ओरली हम लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा,
एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स। सस्पेंशंस के पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, अच्छी बायोबिलिटी आएगी, अच्छे से सॉल्युबलाइजेशन होगा, राइट। बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर इंट्रामस्क्यूलर IM, जब हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है, सच एज इन द केस ऑफ प्रोटाबिन, जिंक, इंसुलिन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो ड्रग रिजर्वायर की तरह काम करते हैं और स्लोली ड्रग को रिलीज होने देते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ एप्लीकेशन, एंड ड्यू टू दैट द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द ड्रग इनटू solution can be achieved which can be absorbed over a long period of time, और हमें लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलता है और यू कैन से कि सस्टेन रिलीज मिलता है, राइट। नेक्स्ट एडवांटेज जिसकी हमने अभी बात की, दैट ड्रग्स एंड सस्पेंशन एग्जिबिट्स अ हायर रेट ऑफ बायोबिलिटी एज कंपेयर टू टैबलेट्स और कैप्सूल्स ऑफ द सेम ड्रग, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल एंटासिड सस्पेंशन, आप एंटासिड जैसे आपने देखा होगा कि आप डाइजिन की टैबलेट लो और एज़ कम्पेयर टू डाइजिन का सोल्यूशन पियो, तो कौन सा जल्दी फास्ट एक्ट करता है, डाइजिन सोल्यूशन, है ना, क्योंकि वो सस्पेंशन होता है, उसके पार्टिकल साइज़ छोटी होती है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सोल्यूबलाइजेशन जल्दी होगा, सोल्यूबलाइजेशन हो गया तो क्विकली सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया ड्रग, सीधे एब्जॉर्ब होगा, क्विक इफेक्ट आएगी और बायोबिलिटी ज़्यादा होगी। Now what are the disadvantages of the suspension? So let's study about this. First and foremost disadvantage of suspension is sedimentation, क्योंकि अभी हमने पहले बात की कि कौन सा सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो फ्लोटिंग स्टेज में, सस्पेंडेड स्टेज में ज़्यादा टाइम तक या इनफाइनाइट टाइम तक रहे, दैट इज़ कॉल्ड एज गुड सस्पेंशन एज अकॉर्डिंग टू द आइडियल डेफिनेशन, राइट। बट क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूलेशन है उसमें ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, पार्टिकल्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और साइज़ के अकॉर्डिंग, जिसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी है वो जल्दी नीचे आ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, जिसकी छोटी साइज़ है वो धीरे धीरे बाद में सेडिमेंट होगा ओवर द टाइम, राइट। एंड ड्यू टू द सेडिमेंटेशन ऑफ सॉलिड्स व्हाट हैपन्स, it may lead to a formation of compact mass which we call a caking phenomena। यहाँ पे एक केक जैसा बन जाएगा ओवर द टाइम, अगर इस प्रोडक्ट को हम रखे रहेंगे ऐसे सस्पेंशन को, तो क्या होगा, नीचे एक केक बन जाएगा, सॉलिड मास दिखेगा आपको, राइट, एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू रिडिस्पर्स। जब आप उसको ऐसा जब केक बन जाएगा तो उसको आप रिडिस्पर्स करोगे, तभी सस्पेंशन के ऊपर क्या लिखा होता है बॉटल पे, शेक वेल बिफोर यूज़, आपको अच्छे से हिलाना होता है उसको। वाई, बिकॉज आप डिस्पर्स करते हो, आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देते हो ताकि पार्टिकल्स फिर से दोबारा सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो ऐसा जब केक बन जाता है केकिंग फिनोमिना की वजह से, तो उसको डिस्पर्स करना डिफ़िकल्ट होता है, एंड दैट इज़ द डिसएडवांटेज, राइट। अगर यही डिसएडवांटेज को अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो सस्पेंशन की बॉटल को आपने अगर शेक वेल बिफोर यूज़ नहीं किया, इट मीन्स कि आपने अगर सही से उसको शेक किया नहीं और सीधे ही ले लिया, आपने डोजेस ले लिया 2 चम्मच या 1 चम्मच जो भी पीना है, अब उसमें क्या होगा, ऊपर का सिर्फ व्हीकल है वो आ जाएगा कंटिन्यूस फेज, लेकिन आपका जो डिस्पर्स फेज है सॉलिड पार्टिकल्स वो तो नीचे सॉलिड फॉर्म में केक बना के बैठे हुए हैं, वो आपकी बॉडी में जाएंगे ही नहीं, तो आपको जो ड्रग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, राइट। तो ये एक डिसएडवांटेज है ना। सेकंड डिसएडवांटेज इज डोज प्रिसीजन विच कैन नॉट बी अचीव्ड विद सस्पेंशन। वाई, अनलेस अ सस्पेंशन आर पैक्ड इन अ यूनिट डोजेस फॉर्म। ये भी एक बहुत ही खास चीज़ है और बहुत ही मतलब ऐसा डिसएडवांटेज है जो कि टैबलेट और कैप्सूल और दूसरे और डोजेस फॉर्म के साथ नहीं देखने को मिलता है। टैबलेट में क्या होता है, 500 मिलीग्राम अगर कोई ड्रग है जो एक टैबलेट में है तो आपको 500 mg ड्रग आपकी बॉडी में जाएगी, दैट इज़ श्योर। पर अगर आप सस्पेंशन की बात करें तो क्या होता है, सस्पेंशन को आपने कभी ज़्यादा शेक किया, कभी कम शेक किया, नीचे थोड़ा पाउडर फॉर्म रह गया, अगर वो होमोजेनस फॉर्म में नहीं है, राइट। होमोजेनस मीन्स अच्छे से वेल सस्पेंडेड सारे पार्टिकल्स नहीं हैं। मान के चलो कि एक सस्पेंशन ये है उसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं, अगर वो 100 के 100 पार्टिकल्स अच्छे से ऐसे डिस्पर्स नहीं है डिफरेंट जगह पे, तो क्या होगा, मान लो कि नीचे है वो 60 पार्टिकल्स है, ऊपर 40 पार्टिकल्स है, आपने इसमें से 2 चम्मच ले लिया,
यहाँ पे कम ड्रग है, राइट, और ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स तो नीचे ही रह गए। तो उस वजह से डोज का प्रिसीजन नहीं होता है, राइट। डोज थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है इस फॉर्मुलेशन का। एंड दैट इज़ वाई हमेशा जब इस सस्पेंशन को यूज़ करना है तो सबसे पहले अच्छे से उसको शेक करना ज़रूरी है, ताकि सारे पार्टिकल्स अच्छे से सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन। इसमें क्या होता है, बीइंग अ लिक्विड डोजेस फॉर्म, जितने भी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं तो उसमें ये खास करके एक चांस रहता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का। अगर कहीं से आप जितनी बार बॉटल ओपन करते हो फिर से बंद करते हो, और उस दौरान अगर कोई माइक्रोब्स या कुछ एयर में से बैक्टीरिया, फंगई, मोल्ड्स ये अगर आ गया, एंड प्रिजर्वेटिव आपने अगर यूज़ नहीं किया है या कम अमाउंट में यूज़ किया है, सफिशिएंट प्रपोर्शन में नहीं है, तो क्या होगा, माइक्रोब्स ग्रो करेंगे और माइक्रोबियल कंटामिनेशन करेंगे। दैट्स वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ एडिंग एक्यूरेट प्रपोर्शन ऑफ द preservatives, right? The fourth disadvantage is being a bulky product as compared to syrup or tablet or capsules. It is a bulky product because we have the solid in liquid continuous phase, right? And generally suspension की क्या होती है, bottles होती है, and transportation bottles का कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है एज वेल एज़ कॉस्टली भी होता है, क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो सकती है, ग्लास की बॉटल्स है तो, और ये हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, राइट। नाउ लेट्स हैव अ क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। सो ऑन विच बेसिस वी कैन क्लासीफाई आवर सस्पेंशन डोजेस फॉर्म, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। So let's first understand, on the basis of preparation we can classify suspension as diffusible solids, indiffusible solids, precipitate forming liquids and chemical reaction. So what they say, on the basis of preparation, if we are while preparing the suspension, if we are using the diffusible solids, then it can be classified as diffusible solid suspension. If we are using indiffusible solids, we can call as indiffusible solid suspension. If we are making it by precipitate forming liquids, then that is different type of suspension. And by chemical reaction, by doing a chemical reaction, if we are getting a suspension dosage form, then that is called, which is made based on chemical reaction. On the basis of route of administration, we can classify it as oral suspension, which are being used by oral route, parenteral suspension, which are given by parenteral routes like IV, intramuscular, subcutaneous or other invasive routes, and ophthalmic suspension, which are used as eye preparation, and they are given for ophthalmic disorders or diseases, right, they are instilled into eye. And topical suspensions, टॉपिकल सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, स्किन के ऊपर जो अप्लाई होते हैं, राइट। तो ये सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what are the basic excipients which are used during formulating the suspension. So these four organoleptic additives, preservatives, wetting agent and flocculating agents, these are the four main types of excipients which are used while formulating suspension. First of all, let's understand about the organoleptic additives, or you can say organoleptic property enhancing excipients. So कलरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट का काम क्या होता है, कलर प्रोवाइड करना, बिकॉज पेशेंट को कलरफुल और अच्छा सा सस्पेंशन डोजेस फॉर्म हो, जो मीठा हो, ऐसी दवाई ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो एक ऑरेंज कलर का डोजेस फॉर्म होगा तो अच्छा लगेगा उनको एज कम्पेयर टू प्लेन डोजेस फॉर्म. स्वीटनिंग एजेंट टू मास्क द टेस्ट ऑफ एनी ड्रग विच इज़ हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट, तो हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड करेंगे जिससे कि पीडियाट्रिक एज वेल एज नॉर्मल पेशेंट्स को भी एक जो मीठा स्वाद है वो पसंद आता है, राइट, फॉर्मुलेशन का. इस वजह से हम स्वीटनिंग एजेंट ऐड करेंगे. देन फ्लेवरिंग एजेंट, हम सस्पेंशन को फ्लेवर भी दे सकते हैं, लाइक लेमन फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर्ड सस्पेंशन. तो इस तरीके के फ्लेवर्स वाले भी होते हैं, तो दे इंक्रीज द एरोमा एज वेल एज द overall taste of the formulation. So this kind of organoleptic additives are also used
to make our formulation more appealing to the patients, and so that the patient compliance as well as patient acceptance can be enhanced. Now the preservatives. So what kind of preservatives we used? Benzoic acid, sodium benzoate, methyl paraben and propyl paraben. These are the four preservatives which are widely used while making suspension. And then wetting agents. Now what are the wetting agents? As the name suggests, wet का मतलब क्या होता है? गीला होना. तो वेटिंग मीन्स वो आपके ड्रग पार्टिकल्स का ये जो आपका कंटिन्यूस फेज है. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये मान लो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं ड्रग के और कंटिन्यूस फेज है. और हमने जब आगे भी स्टडी किया था कि इन दैट केस जहाँ पे आपकी ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी पुअर है, इनसॉल्युबल इन पुअर, और मतलब पानी में वो सॉल्युबलाइज नहीं है, राइट, इनसॉल्युबल है, उस केस में क्या होगा? इसका वेटिंग अच्छा नहीं होगा. हमारे जो पार्टिकल्स है वो पानी के साथ अच्छे से कॉम्पेटिबल फॉर्म में नहीं होंगे. ठीक है, उस वजह से हम क्या करते हैं? वेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सो दैट जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स है या सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक कॉम्पेटिबल फॉर्म में यहाँ पे रहे और उसकी जो सरफेस है एटलीस्ट दैट कैन बी वेटेड, और यू कैन से कि उसको एक कॉम्पेटिबल फॉर्म में हम ला पाए. ठीक है. फ्लक्चुएटिंग एजेंट. अब जब भी हम फ्लक्चुएटिंग एजेंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ्लक्यूल्स क्या होते हैं, राइट. तो फ्लक्यूल्स का मतलब यहाँ पे देखो कोई फ्लक्यूल्स नहीं है. ईच एंड एवरी सॉलिड पार्टिकल इज इन डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट जगह पे, अलग अलग अपनी अपनी जगह पे हैं. अब यहाँ पे मान लो फ्लक्यूल्स बनेंगे तो कैसा बनेगा? फ्लक्यूल्स मीन्स एग्रीगेट्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, राइट. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज फ्लक्यूल. 5-6 पार्टिकल जोड़ के एक बड़ा सा पार्टिकल टाइप या एक जुमखा सा बनाएंगे, जैसे आपने ग्रेप का जुमखा देखा होगा, राइट. वैसे ही तो अंगूर के जुमखे की तरह बन जाते हैं, पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं फ्लक्यूल, राइट. ये फ्लक्यूल्स बनाने का जो काम करता है उस एजेंट को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग एजेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्या होता है, जैसे हमने आगे बात की थी, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको. जैसे हमने आगे बात की थी कि जब ओवर द टाइम सस्पेंशन को रखा जाएगा तो उस टाइम पे उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेडिमेंट होंगे ओवर द टाइम. और अगर ये धीरे धीरे जब सेडिमेंट होते जाएंगे तो नीचे एक सॉलिड मास बनाएंगे जिसको हम कहते हैं केक फॉर्मेशन, या उसको केकिंग फिनोमेना कहते हैं, राइट. अगर ये केकिंग फिनोमेना हो जाता है तो वो एक हार्ड केक फॉर्म करता है. ठीक है, अगर उसके अंदर उस सस्पेंशन में फ्लक्चुएटिंग एजेंट नहीं डाला गया है तो, राइट. तो क्या होगा? ये फ्लक्यूल्स नहीं बनाएगा, सिंगल पार्टिकल ऐसे ऐसे नीचे जुड़ता जाएगा और क्या करेगा? एक केक फॉर्म बनाएगा. केक फॉर्म कैसा होता है? अब ये हार्ड केक फॉर्म है. यू कैन सी हियर इतने सारे पार्टिकल्स आपस में एकदम, बीच में कोई जगह नहीं है. ठीक है, एकदम ऐसे जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे पार्टिकल वॉइड स्पेस में आ जाएंगे और पूरा एक केक फॉर्म करेंगे, और ये बहुत ही हार्ड होगा. ठीक है, इस केक फॉर्म को आपको, बिकॉज ये अच्छी चीज़ नहीं है हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के लिए, राइट. क्योंकि जब आप इसको शेक वेल करोगे, मतलब जब शेक करोगे या एनर्जी दोगे, डिस्पर्स करना चाहोगे तो वो डिस्पर्स नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज द केक इज़ हार्ड केक, और जब हार्ड केक फॉर्म हुई है तो उसको डिस्पर्स करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. अगर हमने फ्लक्चुएटिंग एजेंट डाला हुआ है वो क्या करेगा? फ्लक्यूल्स बनाएगा, और जब फ्लक्यूल्स बन जाएंगे तो क्या होगा? जब ये फ्लक्यूल्स सेडिमेंट होंगे तो फ्लक्यूल्स का सेडिमेंटेशन जब होगा आपका तो कैसे होगा? अब इट विल मेक अ लूज फॉर्म ऑफ केक, हार्ड केक नहीं बनेगी. एक फ्लक्यूल का जुमखा इधर आया, दूसरा ऐसे आएगा, बीच में वॉइड स्पेस रहेगी, राइट. बीच में मतलब स्पेस रहेगी ना, तो एक लूज केक बनेगी. और ये जब ऐसी केक बनती है तो उसको आप इजीली डिस्पर्स कर सकते हो. थोड़ा सा आप एनर्जी दोगे, थोड़ा सा शेक करोगे बॉटल को, और वो सारे पार्टिकल्स अगेन सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाएंगे. तो इस फिनोमेना के लिए स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं? फ्लक्चुएटिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं सस्पेंशन की.
इसके एग्जाम्पल है सोडियम लोराइल सल्फेट, ट्वीन्स एंड स्पंज. Now what are the different formulating excipients which we are using for suspension? कौन कौन से हम excipients यूज़ करते हैं उसमें थिकनिंग एजेंट, इसके बारे में भी समझना ज़रूरी है, विच वी कैन ऑल्सो कॉल ए सस्पेंडिंग एजेंट. हम जैसे कहते हैं जो गम ट्रगाकांत और डिफरेंट गम्स यूज़ करते हैं, गम अकेशिया, या ऐसे एजेंट यूज़ करते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, जो क्या करेगा, ज़्यादा विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा. अब आप ये सोचिए कि आपके पार्टिकल्स है, ये सस्पेंडेड है, अगर ये लेस विस्कोसिटी वाले कंटिन्यूस फेज में होंगे तो ईजीली सेडिमेंट हो सकते हैं. बट अगर इसमें हाई विस्कोसिटी वाला कंटिन्यूस फेज होगा, मीन्स थिक फेज होगा, तो उसमें वो ईजिली सेडिमेंट नहीं हो पाएंगे और सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे. राइट, सो दैट्स वाई वी यूज़ थिकनिंग एजेंट और यू कैन से सस्पेंडिंग एजेंट्स. राइट, अनदर एक्सिपिएंट इज पॉलीसैकेराइड. अब ये देखिए थिकनिंग एजेंट्स के पहले हम टाइप देख लेते हैं, कितने टाइप के थिकनिंग एजेंट्स होते हैं या सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं. And we can also call it as a classification of suspending agent. So there are three types of thickening agents: polysaccharides, or you can say the thickening agents which are obtained from the natural sources, and inorganic agents and synthetic compounds. Right. So in polysaccharides we have natural polysaccharides like gum acacia, tragacanth gum, starch, etc. Semi-synthetic polysaccharides we have methyl cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, which is generally abbreviated as sodium CMC, and microcrystalline cellulose as well. Then in inorganic thickening agents like clay, or you can say bentonite, which we are generally using for calamine suspension or calamine lotion. Then aluminum magnesium silicate, which is widely used as a clay type of thickening agent, and एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, जिसको हम जनरली एलम के नाम से जानते हैं. राइट, सो दे आर इनऑर्गेनिक एजेंट्स एंड विच आर बीइंग यूज्ड एज थिकनिंग एजेंट. सिंथेटिक कंपाउंड्स, in that we have carbomer and colloidal silicon dioxide. These are the synthetic compounds which are being used as thickening agents while formulating suspension. Now what are the applications of suspension? Let's briefly understand the applications of suspension. So first is nanosuspension. If a suspension which is having a solid particles of size range less than 1 micrometer, less than 1 micrometer means 1 micron is equal to 1000 nanometer, right? So it will go into the scale of nanometer, and that's why it is called nanosuspension, because the particle sizes less than 1 micrometer, and this size means diameter of the suspended particles, right? So they are called nanosuspension, and this nanosuspension are having being utilized for the various treatments. Taste mask pharmaceutical suspension are also used to mask the bitter taste of the drug by using three approaches, mostly polymer coating, encapsulation with basic drugs, and coating as well as pH control. Then sustained release suspensions, which are also used. In that, what is the specific property? That the sustained release method will increase the duration of drug action without affecting the onset of action, and it can be achieved by coating the drug particles with polymers such as ethyl cellulose, utrazite, and cellulose acetate. So this kind of advanced form of suspension, and this is also the basic application of suspension in current days, which we have discussed here. Thank you.